ایپیسوڈ 16۔ دلی دل میں خیر و عافیت کی دعائیں مانگتی وہ ڈیفینس پہنچ گئی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ کچھ اور متفکر ہوئی۔ ماحول پر وہی سہما و سناٹا طاری تھا جو پاپا کے ابتر موڈ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ماما خاموش اور زرد رو دکھائی دیتی تھی۔ خاص الخاص ملازمہ فوزیہ کے سوا کوئی ملازم بھی اندرونی حصے میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ ماں سے سلام دعا کر رہی تھی جب فوزیہ نے اسے آ کر بتایا کہ بڑے صاحب اسے اوپر والے کمرے میں یاد کرے ہیں۔ بالائی منزل کا یقبی کمرہ وہی تھا جہاں پاپا کسی کو اہم ترین گفتگو کے لیے بلاتے تھے۔ ہاشا کا دل مزید شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ زینے چڑھ کر بالائی منزل پر پہنچی۔ وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش بھی کر رہی تھی کہ عدیل گھر پر ہے یا نہیں، پر وہ کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکال سکی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو پاپا نے کہا، دروازہ بند کر دو۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سنگل صوفے پر بیٹھے تھے۔ انگلیوں میں سگریٹ دبا تھا۔ کمرے میں الکوہل کی بو صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے اپنی سوجی پلکیں اٹھا کر ہاشا کو دیکھا اور تیز لہجے میں بولے، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک وہ اسے گھورتے رہے، پھر بولے، آج مجھے سچ سچ بتا دو، یہ کس جرم کی سزا دے رہی ہو ہمیں؟ جی؟ اس رائٹر وسیم ساحلی کے لیے وکیل کا انتظام تم نے کیا نا؟ نہیں پاپا، وہ دراصل کل بھی تم ملی ہو اس سے نا، وسیم کے گھر جا کے؟ نہیں پاپا، آپ سے کس نے کہا؟ مجھ سے اس نے کہا۔ سجاد صاحب نے نہایت زہریلے انداز میں کمپیوٹر کی طرف اشارہ کیا جس میں سائم کی USB لگی تھی۔ انہوں نے ریکارڈنگ آن کر دی۔ ہاشا کی آواز کمرے میں گونجی، اچھا پلیز خانسامہ کچن میں میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں فون رکھ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، مردانہ آواز نے سر دہا بھرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ہاشا کو خدا حافظ کہتے ہوئے دل گداز انداز میں یہ شعر پڑھا، میرے دستے طلب پر آپ اپنا خالی ہاتھ ہی رکھ دیں، کچھ نہ ملنے سے ساحل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاشا کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا اور چہرے پر تلاتم کی کیفیت تھی۔ کیا ہے سب؟ کیا ہے؟ وہ ایک زوردار تھپڑ ہاشا کے گال پر پڑا اور اس کی آنکھوں میں ستارے ناچ گئے۔ پاپا کی جنون زدہ دھاڑ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تو ہمارے لیے ذلت و بدنامی کا دوسرا نام ہے۔ تیرے بچپن سے لے کر اب تک ہم نے تیرے عذاب ہی جھیلے۔ بدبخت، اب شادی شدہ ہو کر یارانے لگاتی پھر رہی ہے۔ تجھے موت کیوں نہ آ گئی؟ پیدا ہوتی تو مر کیوں نہ گئی؟ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دی۔ پاپا میرا قصور تو بتا، میں نے کیا کیا ہے؟ ایک اور تماچا ہاشا کے گال پہ پڑا۔ حرامزادی، بھی اپنا قصور پوچھ رہی ہیں کہ ریکارڈنگ تجھے سنائی نہیں دے رہی؟ وہ اتنی زور سے دھاڑے کہ کمرے کی دیواریں لرزتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہی وقت تھا جب دروازہ دھماکے سے کھلا اور ہاشا کی ماں لپک کر ہاشا اور اس کے باپ کے درمیان آ گئی۔ خدا کے لیے سجاد، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جوان بیٹی ہے، بات تو سن لے اس کی، کیا کہتی ہے وہ؟ سجاد صاحب کا پارا ساتویں آسمان کو چھو گیا۔ وہ بلا تردد صفیہ کے بال پکڑ کر چنگاڑے، اور تو اپنی لاڈلی کے آگے ڈال بننے کے لیے، یہ سب تیرے کرتوتوں کا پھل ہے، سب تیرا کیا دھرا ہے، اس کے حصے کے جوتے بھی تجھے ہی پڑنے چاہیے۔ اور پھر واقعی سجاد صاحب نے اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے جوتا اتارنا چاہ رہے ہوں، مگر اتفاقاً وہ قالین پر ننگے پاؤں کھڑے تھے۔ تب شدید ہیجان کے عالم میں ان کا ہاتھ بے ساختہ پینٹ کی بیلٹ کی طرف بڑھ گیا۔ انہوں نے بیلٹ کھینچی اور پہلی بے دریغ ضرب صفیہ کے چہرے پر ہی لگائی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ تھام کر چلائیں اور تکلیف کی شدت سے دوہری ہو گئی۔ ان کی اینک ٹوٹ کر دور جا گری۔ وہ رکوع کسی حالت میں جھکی ہوئی تھی جب سجاد صاحب نے ان کی کمر پر بیلٹ برسانا شروع کر دی۔ پلیز پاپا، پلیز پاپا، ہاشا دعائی دے رہی تھی۔ پھر یکا یک پتہ نہیں کیا ہوا، ہاشا کے اندر ایک اور طرح کی لہر ابھر آئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر نمودار ہو گیا جب شادی سے پہلے ایک دن پاپا نے ایسے ہی غضبناک ہو کر اس پر چڑھائی کی تھی۔ وہ جیسے اندھے ہو گئے تھے، اسے تھپڑوں اور ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا۔ وہ کسی حقیر مخلوق کی طرح قالین پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی اور اس کا دوپٹہ جو اس کے لیے ہمیشہ پردے، وقار اور تحفظ کی علامت رہا تھا، پاپا کے پاؤں میں رول رہا تھا، گھسیٹا جا رہا تھا۔ اپنے اس گلابی دھاری دار دوپٹے کی توہین و بیچارگی کبھی بھی ہاشا کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی، اور جو چیز نگاہوں کے سامنے رہتی ہے وہ جسم اور روح پر اپنے اثرات بھی چھوڑتی ہے۔ شاید یہی اثرات تھے جنہوں نے ہاشا کے اندر بے خوفی کی یہ لہر پیدا کی تھی۔ اس نے آج تک باپ کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولی تھی، اور مزاحمت کا تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر آج اپنی دکھیاری ماں کو کسی بے زبان جانور کی طرح باپ کے ہاتھوں پٹتے دیکھ کر وہ خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے لپک کر پاپا کی بالوں بھری توانا کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ بس کرے پاپا، خدا کے لیے بس کر دیں۔ اس کی آواز میں ایک آتش تھی۔
सज्जाद साई ने जैसे ठिठक कर और चौंक कर हाशा की तरफ देखा। उन्हें जैसे यकीन ही नहीं आया कि हाशा इस तरह आगे बढ़कर उनका हाथ रोक सकती है। वो जुनूनी अंदाज में दौड़े, पीछे हट जा, मैं कहता हूँ पीछे हट जा, वरना आज मार डालूंगा तुम दोनों को। उन्होंने अचानक अपना बाजू खींचकर हाशा की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा, मगर वो जैसे जोंक बनकर उनके बाजू से चिमट गई। तो मार दे पापा, अभी मार दे, इस तरह तड़पा तड़पा कर जान मत ले। हाशा के लहजे और उसके अंदाज ने सज्जाद साही को बुनियादों से हिला दिया। उनकी सूजी हुई आंखों से शोले निकलने लगे। हरामजादी, तेरी ये जुर्रत। उन्होंने हाशा को घुमाकर कंप्यूटर टेबल पे दे मारा। मॉनिटर फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। सज्जाद साई की कलाई पर से हाशा की गिरफ्त खत्म हो गई। वही बेल्ट जो सफिया पर बरस रही थी अब दुगना शिद्दत से हाशा पर बरसने लगी। और ये सिर्फ बेल्ट की मारी नहीं थी, उसमें ठोकरे और थप्पड़ भी शामिल थे। सफिया के चेहरे पर यकीनन बेल्ट का बकल लगा था। उनके नाक और मुंह से खून रिस रहा था और वो गशी किसी हालत में कालीन पर पड़ी थी। अब उनमें इतनी सकत भी ना थी कि बेटी का दिफा कर सके या शौहर के पांव ही पकड़ सके। खत्म कर दूंगा आज मैं तुझे, जान से मार डालूंगा। सज्जाद साई की जुनून में डूबी हुई आवाज दरो दीवार को लर्जा गई। पूरी कोठी में हर ज़ी नफ्स को जैसे सांप सूंघ गया। कहीं को सदा नहीं थी। वही रेशम जैसे स्याह बाल जो बचपन में अपने बाप के शानों पर बिखरा करते थे अब पापा की मुट्ठी में थे। वो उसे कालीन पर बेरहमी से घसीटते हुए मेज के करीब ले आए। वहशत के आलम में उन्होंने मेज की दराज खोली और उसमें से पिस्तौल निकाल लिया। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। हाशा की आंखें बंद थी, एक हाथ की उंगलियां चिर सी गई थी, नाक से खून की धार निकल रही थी। उसने जैसे एक अजीब बेहसी के साथ खुद को उस कयामत के धारे पर छोड़ दिया। बदतरीन सूरत हाल को देखते हुए सफिया लड़खड़ा कर उठी। शायद किसी को मदद के लिए पुकारना चाहती थी। ताहम इससे पहले ही दौड़ते कदमों की सदा आई और अदील आलम अंदर दाखिल हो गया। उन सातों में यही लग रहा था कि बाप बेटी को शूट कर डालेगा। अदील ने बाप का पिस्तौल वाला हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं डैडी, क्यों खून अपने सर ले रहे हैं? हट जाओ तुम पीछे, आज मैंने मार डालना है इसको। प्लीज डैडी, प्लीज, अदील पुकारा। उसने बाप को बाहों के कलावे में ले लिया और धकेलता हुआ दूसरे कमरे की तरफ ले गया। सज्जाद साई की धाड़ें पूरे बालाई पोर्शन में गूंज रही थी। अदील ने पिस्तौल उनके हाथों से ले लिया। फिर कुछ देर बाद सॉरी डैडी कहते हुए उस दूसरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अब सज्जाद साई की गजबनाक आवाज़ें उस बंद कमरे के अंदर ही गूंज रही थीं। अदील अब बहन की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो जख्मी हालत में दीवार से टेक लगाए बैठी थी। सफिया बेगम खुद भी जख्मी थी, मगर हाशा की नाक में से मुसलसल बहने वाले खून को ओढ़नी से रोकने की कोशिश करी थी। अदील ने हाशा के बाल मुट्ठी में जकड़कर सर को जोर से आगे पीछे झुलाया और फनकारा। देख रही हो ना अपनी हरकतों का अंजाम। मैंने कहा था ना इस काम में ना पड़ना। तू पड़ी है और इतना पड़ी है कि बेशर्मों को भी पीछे छोड़ गई है। लाना तो तुझ मनहूस पर। सफिया बिल्की, अदील, इस बदनसीब की बात तो सुन लो, ये कहती क्या है? खुदा के लिए अब चुप रहे मामा, हमें पता इसने जो कहना है। आपने बेटी पैदा नहीं की, एक आफत पैदा की है, हमारी इज्जत का खतरा पैदा किया है, और ये खतरा शायद मरते दम तक हमारे साथ रहना है। चल नीचे, वरना भी मरी जाएगी अपने बाप के हाथों। उसने हाशा को बाजू से पकड़कर खींचा और उठाकर बोला, तो मार देना भी, बात पर क्यों डालने हैं? वो बंद आंखों के साथ कराही। उसकी एक आंख सूझती जा रही थी। इस मर्तबा उसे उल्टे हाथ का थप्पड़ अदील ने मारा। पता मुझे, जुबान भी लग गई तुझे। आज बाप के सामने भी बोलिए तू, कल हाथापाई भी करेगी। अपनी मौत पर पक्की मोहरे तो खुद लगा रही है। इसके साथ ही उसने हाशा को दरवाजे की तरफ धक्का दिया और तकरीबन घसीटता हुआ नीचे ले आया। इर्द गिर्द की हर शय हाशा की निगाहों के सामने घूम रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ उसके साथ हो रहा है। वो जो एक पढ़ी लिखी मुहज़्ज़ब लड़की है, जिसने लड़कपन से लेकर अब तक अपनी इज्जत, नामूस और आन का बदर्जा अतम ख्याल रखा है, जो अपने बड़ों के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करती रही है, वो ऐसे सलूक की मुस्तहक कैसे हो सकती है? शाम तक माँ बेटी एक दूसरे की चोटें सहलाती रहीं और हत्तुल मकदूर बरहम पट्टी भी करती रहीं। आंसू और सिसकियों के दरमियान हाशा ने मामा को सारी कथा सुना दी थी। वो ना भी सुनाती तो मामा को पता था कि उनकी बेटी क्या है और क्या कर सकती है। असल मसला तो यह था कि उनको यकीन आता भी, जो अपने शक, अनाद और गज़ो गज़ब के सिवा किसी की कुछ नहीं सुनते थे। अब इस बात को समझना भी हाशा के लिए कतई मुश्किल नहीं रहा था कि फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी साइम के ज़रिए ही उसके बाप तक पहुंची है। इस रिकॉर्डिंग में हाशा की तरफ से कोई काबिल गिरफ्त बात नहीं की गई थी, मगर ये रिकॉर्डिंग सिरे से मौजूद ही ना होती तो भी पापा के नज़दीक हाशा को काबिल गर्दन जनी करार देने के बहुत से जवाब मौजूद थे। हाशा को ज़्यादा चोटें आई थीं। एक आंख सूजकर बंद हो गई थी। उंगलियों वाला जख्म भी खासा तकलीफ दे था। ताहम इन जिस्मानी तकलीफ़ों से कहीं ज़्यादा तकलीफ
इस सलूक की थी जो उसके साथ हो चुका था या होने वाला था। उसे हर घड़ी यही धड़का लगा हुआ था कि अभी पापा फिर उसके कमरे में आन धमकेंगे और संगीन तरीन सूरत हाल पैदा कर देंगे। भारी कदमों की आवाज ने माँ बेटी को सरतापा लर्जा दिया, मगर अंदेशा गलत साबित हुआ। आने वाला अदील था। वो वर्दी में था और शायद ड्यूटी पर जा रहा था। उसने आते ही माँ से मुखातिब होकर ताकुम से कहा, आप जरा थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाएं, मैंने बात करनी है इससे। कुछ तजब्जुब के बाद सफिया बेगम बाहर चली गई। अदील सख्त लहजे में बोला, मैंने डैडी के साथ वाले दोनों कमरे साफ करवा दिए, अब तुम कुछ दिनों के लिए वहीं रहोगी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकती है। मेरा दम घुट रहा है। मुझे अपने घर वापस जाना है। तुम्हें घर वापस नहीं जाना, डैडी का हुक्म है ये। और तुम्हें पता है वो जिस मूड में है, कोई इनकार सुनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वो आछी नजरों से उसे देखता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, तुम रहोगी आशा, तुम्हें मामा की खातिर रहना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब तुम भी अच्छी तरह जानती हो, और काफ़ी हद तक मैं भी। तुम इनकार करोगी तो सज़ा मामा को मिलेगी, और मामा की हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि रोज़ रोज़ की मार बर्दाश्त कर सके। एक बार फिर बता दो तुम्हें, डैडी बहुत बुरे मूड में है। पता नहीं मैंने किस तरह उन्हें संभाला है। आशा ने सर झुकाया और सिसक कर रह गई। साइम भी यहीं शिफ्ट हो रहा है। तुम्हारी सास जी और ससुर जी का वीज़ा लग गया साउथ अफ्रीका का। उन्होंने तो 6-7 माह वहीं रहना है। पापा चाहते हैं कि तुम और साइम यहाँ रहो। आशा को यूं लगा जैसे उसे कोई आदि मुजरिम समझा जा रहा है, और इस अमर की जरूरत समझी जा रही है कि उसे कड़ी निगरानी में रखा जाए। अदील भाई, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? इसकी वजूहात तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। और एक दूसरी बात भी समझा दो तुम्हें, साइम पर खामखा चढ़ाई करने की कोशिश ना करना। उसने जो कुछ किया हम सबकी भलाई के लिए किया है। उससे अपना रवैया बिल्कुल नॉर्मल रखना, बल्कि कोशिश करो कि नॉर्मल से भी अच्छा रहे, वरना डैडी हत्या से उखड़ जाएंगे और उन्हें संभालना मेरे बस में भी नहीं रहेगा। अदिल के लहजे में छुपी हुई धमकी को आशा ने वाज़े तौर पर महसूस किया। करीबन 1 घंटे बाद आशा उन कमरों में मुंतकिल हो चुकी थी जिसके बारे में उसके बाप ने हुक्म सादर किया था। अपने घर से कुछ ज़रूरी सामान साइम ले आया था, बाकी 1-2 रोज़ में आ जाना था। साइम उससे नज़र नहीं मिला रहा था। वो खुद भी यही चाहती थी कि उसकी नीच फरेबी निगाहों से उसकी निगाहें ना ही मिले। उसके अंदर एक जंग जारी थी और वो बेहाल हो रही थी। रात को हमेशा की तरह साइम और वो बिस्तर के 2 किनारों पर लेटे रहे। जिस्म की चोटें तो आशा को तकलीफ दे ही रही थी, मगर वो ज़रबात जिन्होंने रूह को घायल किया था वो कहीं ज़्यादा तकलीफ दे थी। साइम ने बस 1-2 बार रस्मी अंदाज में उसका हाल पूछा। फिर कुछ ही देर बाद उसकी भारी सांसों की खुमार आलूद आवाज़ आशा के कानों में गूंजने लगी। वो सो चुका था। पता नहीं किसी वक्त आशा को क्यों लगता था कि वो किसी तरह का नशा वगैरह करने लगा है। अपनी जिस्मानी व जहनी कमजोरियों का हल शायद वो किसी तरह की खुद फरामोशी में ढूंढ रहा था। वो हर तरह से कजरा शख्स था। किसी वक्त वो आशा को किसी तरह का माजूर लगता था जो उसके बाप की बैसाखियों के सहारे चल रहा था। शादी के बाद से शायद चंद ही मौके ऐसे आए होंगे जब उन्होंने मियाँ बीवी की तरह शब बसर की होगी, और ये चंद मौके भी आशा को एक करीहा बोझ की तरह महसूस होते थे। बस यही कहा जा सकता था कि उसने अपना अज़दवाजी फरीज़ा अदा किया है। अब इस ताज़ा वाक़े के बाद तो साइम की तरफ देखने को भी उसका जी नहीं चाहता था। उसने किसी मुखबिर की तरह उसकी फ़ोन कॉल रिकॉर्ड की थी और फिर बदतरीन इल्ज़ामात के साथ पापा तक पहुंचाई थी। मगर क्या वो अपने दिली जज्बात का इजहार साइम से कर सकती थी? हरगिज़ नहीं। अदील ने वाज़ेह अल्फाज में धमकाया था और कहा था कि वो साइम से अपना रवैया नॉर्मल, बल्कि नॉर्मल से भी अच्छा रखे। अगले 2-4 रोज़ में आशा पर वाज़ेह होने लगा कि वो अपने ही घर में एक हवालाती की सी हैसियत इख्तियार कर गई है। हवालाती के पास मोबाइल नहीं होता। हवालाती एक जगह तक महदूद रहने पर मजबूर होता है। वो किसी से मिल नहीं सकता, और वो हर वक्त इस अंदेशे में मुब्तला होता है कि अभी तफ्तीशी अफसर अंदर दाखिल होगा और उससे मजीद पूछगछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ आशा के साथ भी हो रहा था। 2-3 दिन तक उसकी एक आंख गहरी सुर्ख रही। आंख के गिर्द नीलगू दायरा सा बन गया था। अब आंख की चोट और दीगर चोटें कदरे बेहतर थी, मगर उंगलियां चिर जाने से जो जख्म आया था वो ठीक नहीं हो रहा था। लगता था कि एक उंगली में कोई फ्रैक्चर भी है। एक रात उसने साथ वाले कमरे में मामा और पापा को बात करते सुना। मामा मतलजी लहजे में कह रही थी, रात को दर्द ज्यादा हो जाता है, कहती है मुट्ठी बंद भी नहीं होती, या किसी डॉक्टर को दिखा ले। तुमसे क्यों कहती है? शौहर मर गया उसका, उसको क्यों नहीं बताती? या फिर उससे बात करके तौहीन होती उसकी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सज्जाद, लेकिन बाहर किसी डॉक्टर को दिखाएंगे
تو وہ कई सवाल पूछेगा। मेरा मतलब है कि डॉक्टर अंसार को घर बुला लिया जाए, वो तो हर तरह से हमारा एतमाद के है ना। तो कह दो अदील से वो फ़ोन कर दे अंसार को, वो शाम तक आकर देख लेगा उसे। लेकिन एक बात उसको बड़ी अच्छी तरह समझा दो, अगर कोई ऐसी वैसी बात उसने अंसार के सामने की ना तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा मैं। नहीं सज्जाद, वो कुछ नहीं बोलेगी, इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो कितनी बेवकूफ़ है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और जितनी अक्लमंद तुम हो इसका भी पता है। इसके साथ ही शायद उन्होंने सफिया के सर के बाल खींचे थे। एक करासी सुनाई दी। ऐसे मौक़ों पर हाशा का दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकल आना चाहता था और हाथ पांव सर्द पड़ जाते थे। उस रोज शाम को डॉक्टर अंसार उसे देखने के लिए चले आए। अदील ने उन्हें यही बताया था कि हाशा वॉशरूम में फिसली है और एक दो चोटें आई हैं। जाहिर है कि हाशा को भी यही मौक़िफ़ अपनाना था। अंसार साहब ने बड़े ध्यान से हाशा की उंगलियों वाला जख्म देखा और मुतफक्किर नजर आया। यह जख्म दरअसल सज्जाद साहिब की बेल्ट के भारी बक्कल का था। बेटी, एक एक्सरे करवा लो तो बेहतर है। वैसे खाने और बैंडेज के लिए मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, वो शुरू कर दो। वो जहांदीदा शख्स थे। जवां साली में उन्होंने दाढ़ी रख ली थी और नमाज रोजे के पाबंद हो गए थे। अब इस अधेड़ उम्री में तो वो डॉक्टर से ज़्यादा एक आलिम दीन नजर आते थे। इस्लाम के हवाले से उनका मुताला भी बहुत वसी था। अपने मरीजों को भी अक्सर पंदो नासे करते नजर आते थे। कुछ लोग एहतराम के साथ उन्हें मौलाना का खिताब भी देते थे। वो हाशा के करीबन सारे हालात से आगा थे। हाशा भी अक्सर उनसे दिल की बात कर लेती थी। पता नहीं उसके दिल में क्या आई, वो अचानक कहने लगी, अंकल, क्या बीवी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने शौहर से मोहब्बत भी करे? ये सवाल तुम क्यों पूछ रही हो? मेरी एक फ्रेंड का सवाल है अंकल। लाहौर में रहती है, वो अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती, पहले दिन से नहीं करती। उसे लगता है कि वो मुसलसल एक झूठ बोल रही है, बोलती चली जा रही है। उन्होंने गहरी सांस ली। जब ऊपर वाला किसी के साथ नसीबा जोड़ दे और फिर नेक नियति से उसके साथ रहा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत भी पैदा हो जाती है। मगर अंकल, अगर उलट हो कि आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत पैदा होने के बजाय दूरी और नफरत बढ़ती जाए तो फिर? ऊपर वाले के पास बहुत सी करिश्माकारियां हैं। उनमें से एक करिश्मा बच्चा है। जब मर्द और जन के रिश्ते में हंसते मुस्कुराते बच्चे शामिल हो जाते हैं ना, तो बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन अंकल, मैं जिस दोस्त की बात करी हूँ वो अपने शौहर और उसके किरदार को इतना नापसंद करती है कि उसका बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहती। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मगर अंकल, वो सोचने पर मजबूर है। वो एक झूठी जिंदगी का तसलसल नहीं चाहती। वो हमेशा से एक सच्ची अज़दवाजी जिंदगी जीना चाहती थी। एक ऐसा ताल्लुक जिसकी बुनियाद दो तरफा मोहब्बत और चाहत पर हो। तुम आइडियलिज्म की बात करी हो? नहीं अंकल, मैं झूठ और सच की बात करी हूँ। तुम या तुम्हारी फ्रेंड, मेरा मतलब उसी से है। डॉक्टर अंसार ने एक बार फिर गहरी सांस लेकर हाशा का चेहरा देखा, जहां अब भी एक दो हल्के नीलगू निशानात मौजूद थे। वो उसका तंदुरुस्त हाथ थपक कर बोले, ऊपर वाला सब कुछ देखता है और अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। वो अच्छा ही करता है। अंकल अंसार, लेकिन ऊपर वाला भी तो किसी जरिए से ही करता है ना। कहते कि दुनिया असबाब का जहां है और रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत को हमारे इरादों के अंदर छुपा रखा है। यही वजह कि उसने दुआ को दवा और अमल के साथ मशरूत किया हुआ है। उसने मर्जों वाला ऑप्शन बहुत महदूद रखा हुआ है। वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे, फिर फीकी मुस्कुराहट के साथ बोले, आज तो वही राइटर वसीम साहिली वाली बातें करी हूँ। कहानी पढ़ी थी मैंने भी उसकी, और ये जानकर अफसोस भी हुआ था कि वो अदब आलिया के म्यार की चीज़ एक डाइजेस्ट में प्रिंट होने के सबब वो मकाम न पा सकी। अब तो एक और भी जुल्म हो रहा है अंकल। एक बड़ी ड्रामा साज कंपनी उस कहानी को ड्रामेटाइज करी है, बगैर किसी इजाज़त, धौंस के साथ। ऐसा मालूम होता है कि हमारे कल्चर में हक, सच और इंसाफ को हर जगह शिकस्त हो रही है। ओह, तो वसीम को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उसमें इतनी सकत नहीं अंकल, वो नहीं लड़ सकता। वो सिर्फ अपना खून जला सकता है और जला रहा है। शोबिस के समंदर में इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं कि व्हेल मछलियों तक को निकल जाते हैं। इसी दौरान डॉक्टर अंसार के फ़ोन पर हाशा के बाप की कॉल आ गई और वो हाशा के बाप को उसकी उंगलियों की चोट और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताने में मसरूफ़ हो गए। फिर मामा भी मुलाजमा के हमरा चाय वगैरह लेकर आ गई और हाशा और डॉक्टर के दरमियान गुफ्तगू आगे ना चल सकी। दूसरे रोज़ वो पापा की हिदायत के मुताबिक साइम के साथ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गई और उसकी उंगलियों का एक्सरे वगैरह हुआ। हड्डी बच गई थी।
وہ گھر میں خود ہی بینڈیج وغیرہ کرتی رہی۔ اگلے 6-7 دن میں زخم بہتر ہو گیا۔ ہاشا کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اس کے یہاں شفٹ ہو جانے کے بعد کاپی رائٹ والے کیس کا کیا بنا ہے، تیمور نے کوئی پیش رفت کی ہے یا نہیں، وسیم کی حالت اب کیسی ہے۔ اسے سوچ کر بھی ہول آتا تھا کہ اس کا موبائل فون پاپا یا عدیل کے پاس ہے۔ اگر وہ آن تھا تو اس پر یقیناً تیمور کی کالز بھی آئی ہوں گی، ہو سکتا ہے کوئی میسج بھی آیا ہو۔ یہ صورتحال پاپا کو مزید مشتعل کر سکتی تھی۔ وہ ہاشا کو ہر وقت غصے میں بھرے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ ایک رات جب وہ اور سائم بستر پر تھے اور بیڈ روم میں اندھیرا تھا، ہاشا نے محسوس کیا کہ سائم اس کے قریب ہے۔ اس طرح کی جرات اب وہ کبھی کبھار کر لیتا تھا، جیسے خاموشی کی زبان میں ہاشا کو اس کا ازدواجی فریضہ یاد دلانا چاہتا ہو۔ شاید اس میں کچھ کردار اس کی ذہنی کیفیت کا بھی تھا۔ ہاشا کو پختہ یقین تھا کہ وہ کسی وقت کوئی نشہ آور چیز بھی استعمال کرتا ہے۔ آج بھی اس نے کروٹ بدلی اور اپنا استخوانی ہاتھ ہاشا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ کراہیت آمیز گریز ہاشا کے اندر جاگا جو پہلے دن سے اس کے ساتھ تھا، اور اب سائم کے ناپسندیدہ رویوں کے سبب مزید بڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بھنائے ہوئے انداز میں سائم کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور کروٹ بدل کر بیڈ کے بالکل کنارے پر چلی گئی۔ 2-3 منٹ بعد ہاشا کو اندازہ ہوا کہ سائم بستر سے اٹھ رہا ہے۔ پھر اس نے کمبل اٹھایا اور بڑی خاموشی کے ساتھ دروازہ کھول کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ یہ دونوں کمرے ان دونوں کے لیے ہی مخصوص تھے۔ اگلے روز صبح جب پاپا، بھائی اور سائم گھر سے چلے گئے تو ماما سہمی ہوئی سے اس کے پاس آ گئی۔ ہاشا، رات کیا ہوا تھا بیٹا؟ کیا ہوا تھا ماما؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ تمہارے پاپا کا موڈ بہت خراب ہے۔ صبح انہوں نے دیکھا سائم دوسرے کمرے میں سو رہا ہے۔ میرے ساتھ وہ بہت سخت بول کر گئے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ وہی جو ہمیشہ کہتے ہیں، میرے لاڈ پیار نے تمہیں بگاڑ کے رکھ دیا۔ میں ماں نہیں، دشمن ہوں تمہاری زندگی تباہ کرنے والی۔ بات اب ہاشا کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ سائم کے دوسرے کمرے میں سونے سے پاپا مشتعل ہو گئے تھے اور ہمیشہ کی طرح غصہ ماما پر نکالا تھا، مگر ابھی پورا غصہ نہیں نکالا تھا، بہت کچھ ابھی باقی تھا، اور اس کا ثبوت شام کے بعد ملا۔ پاپا کے چہرے کی ایک جھلک دیکھ کر ہی ہاشا کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کو ڈر تھا کہ وہ اس کے کمرے میں آن دھمکیں گے اور کوئی بہانہ بنا کر سختی سے پیش آئیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے وہی ٹول استعمال کیا جو پہلے کرتے رہے تھے۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا عذر تراشا، مگر رات 10-11 بجے کے لگ بھگ ماما کی شامت آ گئی۔ وہ پہلے گرجے برسے، پھر ماما کو کئی تھپڑ جڑ دیے۔ اس کے بعد پاؤں سے فرش کوٹتے ہوئے بالائی کمرے میں چلے گئے۔ ہاشا اپنے کمرے میں تڑپ کے رہ گئی۔ پاپا اور عدیل کے ہوتے ہوئے وہ اتنی جرات نہیں کر سکتی تھی کہ ماں کے کمرے میں جائے اور ان کا حال پوچھے۔ شاید چند دن پہلے عدیل نے ٹھیک ہی کہا تھا، نافرمانی تم کرو گی اور سزا ماں کو بھگتنا پڑے گی، اور ماما کی ہڈیوں میں اب اتنی سکت نہیں ہے کہ روز روز کی مارے جھیل سکے۔ اوہ خدایا، میں کیا کروں؟ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ صرف 3-4 روز بعد پھر اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہو گیا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ پہلے والے واقعے کا ری پلے تھا تو غلط نہ ہوگا۔ اس دن سائم کی سالگرہ بھی تھی۔ ساؤتھ افریقہ سے اسکائپ پر اس کے امی ابو نے بھی بات کی، گھر میں کیک وغیرہ کاٹا گیا۔ شاید آج وہ توقع کر رہا تھا کہ ہاشا کا رویہ اس سے کچھ مختلف ہوگا، لیکن وہ کیا کرتی، اس کا خود پر بس نہیں چلتا تھا، اور آج کل تو بالکل بھی نہیں۔ سائم نے جس طرح بزدلانہ انداز میں اس کے باپ کی نظروں میں اسے رسوا کیا، اس کے دل میں گراسی پڑ گئی تھی۔ شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا، کہاں کہ ازدواجی فریضہ ادا کرتی۔ سائم بھنایا ہوا دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ وہ کشمکش میں رہی کہ کیا کرے۔ اسی کشمکش میں صبح ہو گئی۔ اس روز پاپا کا رد عمل بڑی جلدی ظاہر ہو گیا۔ اتفاقاً ماما سے بھی غلطی ہوئی، مگر اصل وجہ تو وہی تھی کہ پاپا نے سائم کو دوسرے کمرے میں سوتے دیکھا تھا۔ ناشتے کے بعد ماما کو یاد نہ رہا کہ پاپا نے گاؤں جانا ہے اور ان کے کاغذات الماری سے ڈھونڈ کر بریف کیس میں رکھنے ہیں۔ عین وقت پر پتہ چلا تو وہ ہتے سے اکھڑ گئے۔ پہلے ان کے کمرے سے گرجنے برسنے کی صدائیں آئیں، پھر مار پیٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کوٹھی میں وہی سہما سناٹا چھا گیا جو ایسے مواقعوں کے لیے مخصوص تھا۔ عدیل تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا اور اس نے بمشکل ماما کو پاپا کے غضب سے چھڑایا۔ ہاشا اپنے کمرے میں سکتہ زدہ تھی۔ اس کی چھٹی حص اس کے سابقہ تجربات سے نتیجہ اخذ کر کے اسے بتا رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ چٹکنے لگا۔ ہاشا جانتی تھی کہ پولیس کے پاس ٹارچر کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ملزم سخت جان ہے تو پھر اس کے بجائے اس کے پیاروں کو اذیت دی جاتی ہے۔ کیا ایک سابق پولیس آفیسر یہی ہتھ کنڈا اپنی بیٹی کے خلاف استعمال کرا تھا؟ پتہ نہیں کیوں ان لمحوں میں ہاشا کو لگا کہ لڑکپن سے لے کر اس کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ لڑکی ہے اور خوش شکل ہے۔ یہ اس کی اضافی دلکشی تھی جو اس کے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی۔
आशा की माँ दोपहर तक अपने कमरे में बंद रही। फिर आशा हिम्मत करके उनके पास पहुंची। मंजर कोई नया नहीं था। वही गालों पर तमाचों के निशान, बिखरे हुए बाल, रंजो गम और खिजालत के सबब वो अपने आप में सिमटी हुई बिस्तर के किनारे पर बैठी थी। आशा ने उनका मुंह और सर चूमा। मुलाजमा फौजिया को बुलाया और बड़ी मुश्किल से उन्हें चंद लुक़्मे खिलाए। ऐसे मौके पर अक्सर सफिया बेगम को ठंडे पसीने आते थे और बीपी बहुत गिर जाता था। चंद दीवाने लेने से उनकी तबीयत कुछ बेहतर हो गई। माँ की हालत व बेबसी देखकर आशा का दिल रो रहा था। उस दिन के बाद साइम को दूसरे कमरे में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब भी आशा महसूस करती कि वो उससे अपना अज़दवाजी हक तलब कर रहा है या करना चाह रहा है, वो खुद को अपने जिस्म से कहीं दूर ले जाती और अपने खाली पैकर को उसके लिए छोड़ देती। सुबह को वो कुछ नादिम भी दिखाई देता, उससे नजरें मिलाते हुए झिझकता, बहुत जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता। 1 या 2 दिन में वो अपनी इस कैफियत को ज़ायल करने में कामयाब हो जाता। उसके लिए वो खुद फरामोशी का सहारा भी लेता था। ये बात अब कन्फर्म थी कि वो कोई नशा इस्तेमाल करता है। ये जिंदगी किस डगर पर निकल आई थी। वो अपने ही घर में अपने माँ बाप के दरमियान खुद को एक कैदी की तरह महसूस कर रही थी। अजब शबो रोज थे वो। उन दरो दीवार में वो एक जहाँ घुसल घुटन महसूस करती थी। साइम अब घर दामाद था। वो किसी वक्त उसे एक तिफली कीड़े की तरह लगता था। वो कीड़ा जो दूसरे जानदारों के जिस्म पर परवरिश पाता है, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती। शब की तारीकी में एक कराहियत अंगेज कीड़ा उसके अपने जिस्म पर भी रेंग जाता था, जोंक की तरह उसके जिस्म से चिपक कर पड़ा रहता था। किसी के बलबूते पर वो अनचाहे रिश्तों का खराज वसूल करता था। आशा की नफरत बढ़ती चली जा रही थी। किसी वक्त उसका जी चाहता कि उस कीड़े को ठोकर मारकर दूर फेंक दे, मगर फिर माँ की मुसीबत ज़दा सूरत निगाहों में घूम जाती। बाप के इश्तियार, माँ की मुसीबत और आशा के रवैये में ताल्लुक अब मुसद्दक़ा था। पिछले 1 माह में वो बड़ी अच्छी तरह जान गई थी कि साइम से उसकी बेइत्नाई पर पापा का रद्द-ए-अमल क्या होगा, और अब तो वो रद्द-ए-अमल देने में ज़्यादा देर भी नहीं करते थे। करीबी सिनेमा में एक अच्छी 3D फिल्म लगी हुई थी। एक वीकेंड पर साइम उसके 2 टिकट ले आया। बड़ी अच्छी इंग्लिश मूवी है, आज चलते हैं। उसने नजरें झुकाए झुकाए आशा से कहा, तुमने पूछ लेना था ना, आज तो बिल्कुल भी मूड नहीं है, सर भी बहुत भारी हो रहा है। बाहर निकलेंगे तो हो सकता है तबीयत भी बेहतर हो जाए। नहीं आज नहीं, अभी तो मेडिसिन लेकर लेटूंगी। उसने बाल समेटते हुए कहा। पता नहीं 1-2 घंटे में ये बात कैसे पापा तक जा पहुंची। इस मर्तबा उनका गुस्सा आशा पर निकला, क्योंकि मामा पहले ही कुछ अलील थी। वो पालतू रोशू के बहाने आशा पर चढ़ दौड़े। कल इस बदबख्त ने बाहर वाले सोफे पर गंदे पंजे लगाए हुए थे। तुमसे कितनी बार कहा है, दफा करो इसे। कुत्ते बिल्ली का रहायशी हिस्से के अंदर होना निरी गंदगी होती है। मैं रोकूंगी उसे। क्या रोकोगी, क्या करोगी? पिछले 7 सालों में क्या रोका तुमने उसे? हम सबके सर पे चढ़ा हुआ है, बस करो। कोई काकी व चुंगड़ी नहीं रही हो तुम अब। जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी, उन्हें पूरा करो। लानत भेजो उस पर, किसी को दे दो या फिर मैं कहीं फेंक आता उसको। प्लीज पापा, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आई प्रॉमिस। शायद वो मजीद भी कुछ बोलते, मगर इसी दौरान उनके फोन पर कोई कॉल आ गई और वो भिन्नाए हुए अंदाज में बात करते हुए लॉन की तरफ चले गए। रोशू एक कोने में सहमा वसा बैठा था। यूं लगता था जैसे वो भी घर के मालिक के गैज़ो गज़ब को समझता है। आशा को उसकी सूरत पर तरस आने लगा। वैसे भी वो आजकल बहुत उदास था, जैसे कुछ खो गया हो। लॉन की तरफ से पापा की बातों की मध्यम आवाज आ रही थी। अब उनका लहजा काफी नर्म हो चुका था। आशा को अंदाजा हुआ कि दूसरी तरफ कोई खातून है। क्या पता कौन थी। ये भी बईदस कयास नहीं था कि उन खवातीन में से कोई हो जो पापा के लाहौर वाले डेरे को रौनक बख्शती रहती हैं। फिर शगुफ्ता की सूरत आशा की निगाहों में घूम गई। वो सब कुछ याद आया जो उस ड्रामाई मुलाकात में शगुफ्ता ने उसे बताया था। उसके जिस्म में उसके बाप का बच्चा परवरिश पा रहा था। वो एक सर्द आंख खींच कर रह गई। अगले रोज पापा के डर से आशा ने रोशू को बालाई मंजिल पर मुंतकिल कर दिया। वो कुछ बेचैन नजर आया। उसने जालीदार दरवाज़ा मुस्तकिल तौर पर बंद करा दिया ताकि रोशू नीचे का रुख ना कर सके। मगर ये तदबीर पहले ही रोज नाकाम हुई, बल्कि उससे भी बड़ा नुकसान हो गया। पोर्शन में बंद होने की वजह से रोशू चूंकि मुस्तरिब था, लिहाजा मुसलसल बोल रहा था। उसकी मियाऊं मियाऊं नीचे तक सुनाई दे रही थी। फिर वो किसी तरह उस बालाई मंजिल के कॉमन रूम में दाखिल हो गया। यहाँ दीवार पर एक बहुत बड़ी तस्वीर आवेजा थी। ये फ्रेम शुदा तस्वीर उन दिनों की थी जब सज्जाद शाही एसपी थे। एक सूबे के चीफ मिनिस्टर से तारीफी सनद वसूल करते नजर आए थे। कई आला अफसरान उनके दाएं बाएं थे। रोशू की वजह से यादगार तस्वीर अपनी खूंटी से टूटकर फर्श बोस हो गई। मुलाजमा अतिया पुकारती हुई आई, बीबी जी, छोटी बीबी जी, ये देखे रोशू ने क्या कर दिया। छनाके की आवाज तो आशा पहले सुन चुकी थी।
وہ لپکتی ہوئی بالائی منزل پر پہنچی اور سکتہ زدہ رہ گئی۔ نہایت قیمتی فریم چکنا چور ہو چکا تھا اور تصویر کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ او گاڈ! اسی دوران صفیہ بیگم بھی ہانپتی کانپتی اوپر پہنچ گئی۔ تصویر کا حشر دیکھ کر ان کا رنگ ہلدی ہو گیا۔ تمہارے پاپا جان سے مار ڈالیں گے، وہ مری مری آواز میں بولی اور بے دم سی ہو کر کرسی پر گر گئی۔ ہاشا نے روشو کو ڈانٹا ڈپٹا اور ملازموں سے کہہ کر شیشے کے چھوٹے بڑے ٹکڑے اٹھوائے، پھر ماں کو تسلی تشفی دے کر نیچے لائی۔ وہ مسلسل گمسم تھی۔ طبیعت تو ان کی پہلے بھی زیادہ اچھی نہیں تھی، اب بی پی بھی گر گیا۔ ان کی آنکھوں میں ان گنت اندیشے تیر رہے تھے۔ ہاشی، تیرے باپ نے جان نکال دینی ہماری، ان کا موڈ تو پہلے ہی اچھا نہیں تھا۔ ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ کھانے پینے کا انہیں زیادہ شوق نہیں تھا، لیکن کبھی کبھار چکن بریانی شوق سے کھا لیتی تھی۔ آج بھی بریانی بنی ہوئی تھی، تاہم انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، بس ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد بے چینی سے ادھر ادھر پھرتی رہی۔ ہاشا خود بھی ڈری ہوئی تھی، مگر ماں کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ قصور تو میرا ہے ماما کہ میں روشو کو اوپر لے گئی، میں بات کروں گی پاپا سے، اس نے کھوکھلے لہجے میں کہا، اور پھر ملازمہ سے کہہ کر ماں کو تھوڑا سا جوس پلوایا۔ وہ چپ چاپ سی لیٹ گئی۔ وہ ایک بڑا مشکل دن تھا۔ جوں جوں شام کے سائے طویل ہو رہے تھے، پریشانی کے سائے بھی بڑھ رہے تھے۔ ہاشا کے اصرار کے باوجود صفیہ بیگم نے کھانا نہیں کھایا، مگر روٹین کی دوا کھانے کے لیے معدے میں کچھ ہونا ضروری تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے انہیں کچھ چاول کھلائے اور ان کے اصرار پر خود بھی 2-3 لقمے لیے۔ ماما نے بے دلی سے جو چاول کھائے وہ ان کے آخری تھے۔ ان کا دانا پانی ختم ہو چکا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے اچانک ان کو سینے میں شدید درد شروع ہوا، پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ بوکھلائی ہوئے ہاشا نے ڈاکٹر انکل کو فون کیا۔ اس فون کال کے دوران بھی ہاشا کو اندازہ ہو گیا کہ ماما کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ وہ فون چھوڑ کر چلاتی ہوئی ماں کی طرف گئی۔ ماما، ماما! ان کی آنکھیں ہاتھ کھلی تھی۔ اس نے ماں کو جھنجھوڑ دیا اور پھر ان کا سینہ دبانے لگی۔ کوٹھی میں کوہرام سمجھ گیا تھا۔ ڈرائیور، گاڑی نکالو، کسی نے پکار کر کہا۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے وہ آخری ہچکی لے چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ عقاب کے خوف سے کبھی کبھی چڑیا کا دل پھٹ جاتا ہے۔ شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں۔